Which of the following hormone is responsible for ejection of milk? Option A, oxytocin. Option B, prolactin. Option C, progesterone. Option D, estrogen. So our answer is option A, oxytocin. Ejection of milk, इसका मतलब होता है कि मिल्क का बाहर सिक्रीशन होना, निकलना। इसको हम लोग लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहते हैं और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। What is the term used to describe the thinning of the cervix during labor? Option A, quickening. Option B, effacement. Option C, crowning. Option D, station. Our answer is option B, effacement. Effacement मतलब होता है जब सर्विक्स थिन हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है अपनी लेंथ में और वो लेबर के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, उसको हम लोग effacement कहते हैं। Which hormone is responsible for the initiation of contractions during labor? Option A, progesterone. Option B, estrogen. Option C, oxytocin. Option D, prolactin. Our answer is option C, oxytocin. Oxytocin लेबर में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शंस को इनिशिएट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लोकिया in correct order during puerperium is option A, rubra serosa alba. Option B, serosa rubra alba. Option C, alba serosa rubra. Option D, alba mucosa serosa. So our answer is option A, rubra serosa alba. आप इसको RSA शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। चाइल्ड बर्थ से लेकर 6 वीक तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग प्यूपेरियम पीरियड कहते हैं। डिलीवरी के बाद वेजाइनल डिस्चार्जेस आते हैं ब्लीडिंग के तौर पर, जिसको हम लोग लोकिया कहते हैं और ये लोकिया 3 टाइप के होते हैं, लोकिया रुब्रा, लोकिया सेरोसा, लोकिया अल्बा, जिसमें 1 से 4 दिन रुब्रा रहता है, 5 से 9 दिन सेरोसा रहता है, 10 से 15 दिन अल्बा रहता है, जिसका कलर और कंटेंट भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होता है। स्टार्टिंग के दिनों में हैवी ब्लीडिंग रहती है जिसमें कि आरबीसी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और सेरोसा में वो धीरे धीरे करके थोड़ा पिंकिश में हो जाता है, जिस डब्ल्यूबीसी का अमाउंट ज़्यादा रहता है और लास्ट में वो एकदम ही ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है। Nurse is caring for a patient who is experiencing eclamptic seizure at present. Which among the following drug is used as drug of choice? Option A, levodopa. Option B, methyl-dopa. Option C, MgSO4. Option D, hydralazine. क्वेश्चन पूछ रहा है eclamptic seizure का ड्रग ऑफ चॉइस, जिसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सल्फेट। Extra calories needed during second trimester of pregnancy is option A, 300 kilocalorie per day. Option B, 500 kilocalorie per day. Option C, 600 kilocalorie per day. Option D, 700 kilocalorie per day. Our answer is option A, 300 kilocalorie per day. What is the most common type of episiotomy performed during labor? Option A, right mediolateral. Option B, lateral. Option C, J-shaped. Option D, medial. तो लेबर के टाइम पे इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप की एपिजियोटमी कौन सी करी जाती है? Our answer is option A, right mediolateral. The method shown in photograph is commonly used for the screening of option A, mastitis, option B, breast cancer, option C, skin carcinoma, option D, axillary lymphadenopathy. Our answer is option B, breast cancer. इमेज में दिया गया है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का पिक्चर,
जो कि एक स्क्रीनिंग मेथड होता है ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। A pregnant woman at 38 weeks of gestation is admitted in labor. The nurse on duty is aware of the correct sequence of the mechanism of labor. Which sequence is correct? Option A, restitution, internal rotation, crowning and external rotation. Option B, restitution, external rotation, internal rotation and crowning. Option C, restitution, external rotation, crowning and internal rotation. Option D, engagement, internal rotation, crowning, restitution, external rotation. Our answer is option D, engagement, internal rotation, crowning, restitution, external rotation. ये जो स्टेप्स हैं ये होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ लेबर का सीक्वेंस, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में, और इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। A pregnant lady comes to the hospital for ANC and the doctor on duty prescribes a medicine to prevent NTD. Which medicine is prescribed? एक लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, जो कि अब एंटीनेटल केयर करवाने के लिए हॉस्पिटल में आई हुई है। डॉक्टर ने एनटीडी मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो वो इनमें से कौन सी मेडिसिन हो सकती है? ऑप्शन ए है फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी फॉस्फेट। आवर आंसर इज ऑप्शन ए फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दी जाती है और ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट कराता है। What is the medical term for the surgical removal of the uterus? Option A hysterectomy, option B salpingectomy, option C oophorectomy, option D myomectomy. Our answer is option A hysterectomy. यूट्रस को हिस्ट्रस भी बोला जाता है और टॉमी मतलब होता है रिमूवल ऑफ द ऑर्गन। सो हिस्टेरेक्टॉमी मतलब रिमूवल ऑफ द यूट्रस। Identify the instrument shown in the photograph. Option A Doyen's retractor, option B Dewar retractor, option C anterior vaginal wall retractor, option D HSG cannula. So our answer is option A Doyen's retractor. ये रिट्रैक्टर जब एब्डोमिनल सर्जरी होती है या फिर सी सेक्शन होता है उस टाइम पे यूरिनरी ब्लैडर को होल्ड करता है और इंजरी वगैरह होने से बचाता है। What is the dose of iron folic acid prescribed for pregnant women in the Anemia Mukt Bharat campaign? Option A 100 mg, 250 mg, option B 20 mg, 150 mg, option C 30 mg, 200 mg, option D 60 mg, 500 mcg. So our answer is option D 60 mg and 500 mcg. The classical method used in the delivery of fetal head in breech presentation is called option A Pinard maneuver, option B Lovset maneuver, option C Bern-Marshall method, option D McRobert maneuver. Our answer is option C Bern-Marshall method. जब बच्चा ब्रीच पोजीशन में होता है उस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी से फीटल हेड को निकालने के लिए बर्न-मार्शल मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसके स्टेप्स आपको पिक्चर में डिपिक्टेड हैं। A woman delivers a baby vaginally in the labor room after 7 days post-delivery. Which type of lochia is expected to come from the vagina? Option A lochia rubra, option B lochia serosa, option C lochia alba, option D none. सो अभी हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताया था कि लोकिया क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं और वो किन दिनों में देखे जाते हैं। उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी लोकिया सेरोसा इज द राइट आंसर, जो कि 4 दिन से 10 दिनों के बीच में होता है।
Which hormonal contraceptive method should not be used in breastfeeding mother? Option A mini pills, option B combined OCP, option D DMP-AA, option D none. आंसर इज ऑप्शन बी कंबाइंड OCP। कंबाइंड OCP में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये दोनों ही हार्मोन प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इंटरफेयर कर सकते हैं और मिल्क के प्रोडक्शन को भी डिक्रीज कर सकते हैं, इसीलिए कंबाइंड OCP नहीं दिया जाता। आइडेंटिफाई द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शोन इन द इमेज। ऑप्शन ए कोलाज्मा, ऑप्शन बी लीनिया नाइग्रा, ऑप्शन सी स्ट्रिया ग्रेविडेरम, ऑप्शन डी मोंटगोमेरी साइन। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी लीनिया नाइग्रा। ऑप्शन ए कोलाज्मा जो होता है उसको हम लोग प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं, जो कि फेस में बटरफ्लाई जैसा ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं प्रेग्नेंट लेडी के। ऑप्शन सी स्ट्रिया ग्रेविडेरम मतलब स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं थाइज में और एब्डोमेन में। ऑप्शन डी मोंटगोमेरी साइन जो है तो प्रेगनेंसी के दौरान सेकेंडरी मैचुरेशन ऑफ द ब्रेस्ट होता है, उसमें मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स देखने को मिलता है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बी है लीनिया नाइग्रा, ये एक डार्क वर्टिकल लाइन होती है जो एब्डोमेन में दिखाई देती है प्रेगनेंसी के दौरान। मेलानिन प्रोडक्शन के इंक्रीज हो जाने के कारण ऐसी लाइन बन जाती है। Stallworthy sign seen in which condition? Option A hydatiform mole, option B placenta previa, option C circumvallate placenta, option D eclampsia. Our answer is option B placenta previa. जब ये पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसमें हमको स्टैलवर्थी साइन देखने को मिलता है। जब हम लोग फीटल को पैल्पेट करके पता करते हैं तो उसका जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है, यही होता है स्टैलवर्थी साइन। The diameter that is being assessed in the image given is option A obstetrical conjugate, option B anatomical conjugate, option C diagonal conjugate, option D true conjugate. ये एम्स नॉरसेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें ऑप्शन सी डायगोनल कॉन्जुगेट को मेजर किया जा रहा है और ये एकमात्र ऐसा कॉन्जुगेट है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। बाकी एनाटॉमिकल और ऑब्स्टिकल कॉन्जुगेट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। A lady G3A2L0 20 weeks gestation came to antenatal clinic. Which action should be avoided by the nurse? Option A stepping of membrane, option B cervical encerclage, option C oxytocin gel, option D IV oxytocin. Our answer is option D IV oxytocin. क्वेश्चन में G3 मतलब ग्रेविटा 3 है, प्रेगनेंसी ये 3rd है उसकी, A2 मतलब 2 बार अबॉर्शन हो चुके हैं, L0 मतलब लाइव चाइल्ड 0 है, मतलब 2 बार अबॉर्शन हो गए, उसका कोई भी लाइव चाइल्ड अभी नहीं है, वो 20 वीक के गेस्टेशन में है, तो उसको हमको क्या देने के लिए अवॉइड करना है। पहले भी अबॉर्शंस हो चुके हैं तो ऐसे में ऑक्सीटोसिन हम नहीं देते हैं क्योंकि इस बार भी ग्रेट चांसेस हैं अबॉर्शन हो जाने की, इसीलिए हमको ऑक्सीटोसिन देना इस केस में अवॉइड करना है। What is the most common cause of postpartum hemorrhage? Option A atonicity of uterus, option B trauma, option C oxytosis, option D precipitous labor. Our answer is option A atonicity of uterus. आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज यूट्रस का टोनिसिटी बिगड़ा हुआ होता है, मतलब यूट्रस ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा ना रिलैक्स कर रहा, वो अटोनिक हो गया है, तो ऐसे में हेमरेज वहाँ पे होता रहता है। इसीलिए अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस को हटाने के लिए हमको फंडल मसाज करने की ज़रूरत पड़ती है। The pelvic shape that has the good prognosis from vaginal delivery is option A platyploid, option B anthropoid, option C android, option D gynecoid.
Our answer is option D, gynecoid pelvis. Gynecoid pelvis सबसे suitable माना जाता है normal vaginal delivery के लिए. Which of the following drug is contraindicated in pregnant lady? Option A, heparin. Option B, labetalol. Option C, rifampicin. Option D, streptomycin. Our answer is option D, streptomycin. ये इसलिए कंट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि ये एड्स क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है. At which week mother feels movement of the baby? Option A, 10 to 12 weeks. Option B, 12 to 14 weeks. Option C, 16 to 18 weeks. Option D, 18 to 20 weeks. Our answer is option C, 16 to 18 weeks. जब मदर प्रीमी ग्रेविड होती है तो उसको अपनी फीटल्स की मूवमेंट लेट पता चलती है 18 वीक्स के अराउंड, और जब मदर मल्टी ग्रेविड होती है तो उसको 16 वीक पे ही फीटल मूवमेंट पता चलने लग जाता है. प्लेसेंटा हैज टू बी डिस्कार्डेड इन ऑप्शन ए, येलो बैग. ऑप्शन बी, रेड बैग. ऑप्शन सी, ब्लू बैग. ऑप्शन डी, ब्लैक बैग. Our answer is option A, येलो बैग. येलो बैग को हम लोग बायो हजार्ड बैग भी कहते हैं, जिसमें कि जितने भी एनाटॉमिकल पार्ट रहते हैं उसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं. Identify the instrument given in the image. Option A, surgical scissor. Option B, episiotomy scissor. Option C, cord cutting scissor. Option D, Mayo scissor. Our answer is option B, episiotomy scissor. The leading anatomical part of the fetus closest to the pelvic inlet of the birth canal refers to option A, presentation. Option B, lie. Option C, denominator. Option D, position. तो जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे हमको जो सबसे पहला फीटस का पार्ट दिखाई देता है उसी को हम लोग प्रेजेंटिंग पार्ट कहते हैं. Which of the following biochemical marker detected in a mother's blood in NTD? Option A, AFP. Option B, amino acid. Option C, fibronectin. Option D, alkaline phosphatase. So our answer is option A, AFP. क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बायोकेमिकल मार्कर है मदर के ब्लड से लेते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पता करने के लिए. सो ऑप्शन ए जो है AFP, उसका फुल फॉर्म है अल्फा फीटोप्रोटीन. जब कभी भी कोई कंजेनाइटल एनोमली होती है तो उस कंडीशन में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है. मोस्ट कॉमन है डाउन सिंड्रोम, जिसमें इसका लेवल हाईली इंक्रीज होता है. हाउ टू मेजर द यूट्राइन कंट्रैक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी हु इज ऑन लेबर पेन? ऑप्शन ए, आस्किंग क्वेश्चन टू द लेडी. ऑप्शन बी, बाय यूजिंग पार्टोग्राफ. ऑप्शन सी, असेस बाय प्लेसिंग द हैंड ऑन एब्डोमेन. ऑप्शन डी, असेस बाय परफॉर्मिंग ल्यूपोल्ड्स मैनूवर. Our answer is option C, assess by placing the hand on abdomen. जब कभी प्रेग्नेंट लेडी यूट्राइन कंट्रैक्शन या लेबर पेन में होती है तो उसके एब्डोमेन में हाथ रखने से हमको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फील होता है. सो ऑप्शन ए में हम लोग लेडी से ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आपको लेबर पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन में है, ये पता चल रहा है. ऑप्शन बी, यूजिंग पार्टोग्राफ. तो पार्टोग्राफ होता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर को रिकॉर्ड करने के लिए. जब लेबर स्टार्ट हो जाता है तब हम पार्टोग्राफ का यूज करते हैं कि लेबर कैसे प्रोग्रेस हो रहा है. ऑप्शन जो डी है, असेस बाय परफॉर्मिंग ल्यूपोल्ड्स मैनूवर. तो ल्यूपोल्ड मैनूवर से हम लोग फीटल का लाइव प्रेजेंटेशन पता करते हैं, वो भी 3rd ट्राइमेस्टर में, लेबर के टाइम पे नहीं. सो हमारा सबसे सुटेबल आंसर ऑप्शन सी ही है, असेस बाय प्लेसिंग द हैंड ऑन एब्डोमेन. A female is in labor and assessment reveals that fetal head at +2 station here. What is the mean of this? Option A, at the level of ischial spine. Option B, 2 cm above the level of ischial spine.
ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ ischial spine, ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ ischial spine। स्टेशन ये बताता है कि फीटस पेल्विक इनलेट में है या आउटलेट में है या फिर वो पेल्विक ब्रिम के पास है, एट द लेवल ऑफ ब्रिम। +2 स्टेशन का मतलब होता है द फीटस इज डिसेंडिंग डाउन द ischial spine। +2 मतलब 2 सेंटीमीटर। अगर फीटस पेल्विक ब्रिम के ऊपर है तो वो -1, -2, -3, -4 ऐसे बोला जाएगा। अगर वो ischial spine के नीचे है तो उसमें हम लोग +1, +2, +3 मतलब पॉजिटिव साइन की तरह देखेंगे कि अब बेबी डिसेंट हो रहा है और ये +2 स्टेशन में है, +3 स्टेशन में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस MCQ सीरीज में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कैसे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।